So we'll start with revision of gravitational potential energy, and then we'll move ahead with next topic. So if you remember, in the last session we derived equation for gravitational potential energy, and to derive gravitational potential energy, first of all we took an object. हमारे पास object था which was at some position A above the surface of Earth. So we had an object. Let's take an object over here. तो आपको याद होना चाहिए कि potential energy always comes from work done to move object. तो यहाँ पे in this case हमारे पास एक object है जो initially A position पे है. इसका initial distance था from the center of Earth which was r initial. इस object को हमको at some height ले जाना है at point B. We want to take this, and जिसका final position is RF. Let's say the final distance is RF from the center of Earth. RF. तो मैंने आपको बताया था that for the सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि r cap ये वेक्टर है which is always directed from center to above, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो होता है डाउनवर्ड्स. मतलब r cap को अपोजिट डायरेक्शन में है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब माइनस r cap. तो यू शुड नो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्जेक्ट का A से B, this displacement is made up of number of steps. So what you have in this case, आपको A से B लेके जाना है ऑब्जेक्ट को. So we assume that this displacement from A to B is made up of number of steps, large number of very small steps. तो पहले यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा through a small displacement dr. तो ये जो small displacement है dr, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज f बार डॉट dr बार. लेकिन यहाँ पे f मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? एंड यू कैन सी इन दिस केस दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड. तो यहाँ पे आपके पास आएगा नेगेटिव साइन. ओके, so negative sign in equation number 1 indicates that displacement and force are oppositely directed. Good. Now, of course, आपको पता होना चाहिए gravitational force का formula. It is G, mass of Earth, mass of object upon distance square. लेकिन ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म चाहिए तो you will put r cap, but r cap का डायरेक्शन था सेंटर से अबव, और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पुट माइनस हियर, और ये आपके पास बन गया वेक्टर. तो ये जो Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन है, इसमें जो नेगेटिव साइन है, इट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो ये पता होना चाहिए. देन नाउ वर्क डन to move object through small displacement is minus fg bar dot dr bar. तो fg bar मतलब फोर्स वेक्टर is g m upon r square, और यहाँ पे आ गया r cap with a नेगेटिव साइन, जो कि यहाँ पे भी फोर्स में भी नेगेटिव साइन है, डॉट dr bar, राइट? तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर r cap dot dr bar, right? This is what you will get. और आपको मैंने बताया था ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r cap which is 1, मैग्नीट्यूड ऑफ dr bar, and then you have cosine of angle between r cap and dr bar. r cap भी सेंटर से अबव है, dr bar भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो एंगल इज 0. तो दोनों में एंगल है 0. cos 0 की वैल्यू होती है 1. तो r cap is 1. So you have capital G capital M up into small m upon r square. dr का magnitude है only dr. So this is small amount of work done
to move the object from A through a small displacement dr. Good. अब अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्मॉल वर्क डन, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव होगा फिर वापस स्मॉल से मूव होगा, ऐसा स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हर बार होते रहेंगे, dr 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 dr. So each time the work done is dw. The total work done is integration from A to B dw. And then if you remember, dw is g capital M small m upon r square dr. अब जैसे ही आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर dr लिख दिया, तो then you have to write down initial position of A and B. Initial position is Ri and here you have Rs. उसके बाद हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लिया था, तो G कैपिटल M स्मॉल m ये आ गए बाहर. Then inside integration you have integration from R initial to R final 1 upon R square मतलब R raised to minus 2 dr. Good. Therefore you have W equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m. इसका इंटीग्रेशन होता है -1 बाय R. ऑफ कोर्स 1 ना यहाँ पे, यस. x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. हमारे पास x की जगह पे है R और n की जगह पे यू हैव -2. तो r रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, नीचे -1 और ये r रेज टू -1 मतलब -1 बाय r. तो दिस इज फ्रॉम इनिशियल टू सम फाइनल पोजीशन. गुड. देन नेगेटिव साइन हमने यहां से हटा दी थी, एंड बाय टेकिंग अवे नेगेटिव साइन यू बेसिकली चेंज द लिमिट्स चेंज कर दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो वर्क डन W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 upon R initial minus 1 upon R final. This is the total work done to move object of mass m from some position A to another position B, and this work done is stored in the form of potential energy. So that is why work done is equal to potential energy, or you can say it appears as increase in potential energy. One of the same thing, right? So this work done appears as increase in potential energy. So मैंने बताया था for convenience हम लोग initial position ले लेते हैं infinity. क्यों? क्योंकि initial position पे आपके पास जो potential energy होता है वो होता है 0. याद रखना ये U into Ri नहीं है, ये U of Ri है. Of Ri मतलब U is a function of डिस्टेंस. याद है ना? अगर मुझे लिखना हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग, क्या लिखते हो आप लिखते हो y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन x. तो पोटेंशियल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ r. लेकिन अब अगर आपको लिखना हो, इफ यू वांट टू राइट डाउन, इफ यू वांट टू नो कि y की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे कितनी, तो आप क्या लिखते हो? आप ऐसा लिखते हो y एट 2, या फिर आप ऐसा लिखते हो y एट x इक्वल टू 2 और यहाँ पे f ऑफ 2. मैं भी वही कर रहा हूं. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन r. मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना, इनिशियल डिस्टेंस कितना, इंफिनिटी. तो ये नोटेशन होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. गुड. या तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे u ऑफ i, u सफिक्स i, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है. तो यू शुड नो दिस. जब आप Ri इक्वल टू इंफिनिटी डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1 बाय इंफिनिटी माइनस 1 बाय Rf. लेकिन मैं Rf को भी R बोल देता हूं क्योंकि अब एक ही डिस्टेंस इन्वॉल्व है. जैसे पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट A पे था, अब बोलेंगे इनिशियली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, फिर फाइनली कहां पे है? B पे. तो डिस्टेंस Rf को क्या बोल दोगे? R बोल दोगे. सिंपल, राइट? तो you will get here this as u
capital G, capital M, small m. 1 by infinity is 0 minus 1 by r. Therefore, u equal to minus capital G, capital M, small m by r. ये जो भी equation number होगा, whatever it is, this gives you potential energy of system of earth and mass m when the separation between earth and the object is r. System of, ये important है, it is the potential energy of the system, not of the mass. अगर आपने एग्जाम में लिख लिया potential energy of the mass, मैं आधा मार्क वहीं पे काट दूंगा. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, इंडिविजुअल मास का नहीं होता. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. तो यहां तक सबसे पहले यू शुड नो up to this point how to derive. अब आगे, now what you can do is, now if I ask you what is the potential energy of an object at height h on the from the surface of earth, normally आप बोलते हो mgh. देखा ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, लेकिन हमारे पास कहाँ mgh मिला, हमको तो ये मिला, या फिर हमारे पास ये ऊपर का इक्वेशन है, दिस वन. वेयर इज mgh? डू सी mgh? आई डोंट सी mgh. तो अब देखना है व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विद mgh. हमको अभी देखना है कि ये mgh कैसे आएगा, देखते हैं. सो कनेक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला विद mgh. अब इस केस में हम नोट्स भी बनाते जाएंगे. इट इज वेरी सिंपल. So let us say हमारे पास, let us take an object which is initially on the surface of earth. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, let's take an object which is initially at the surface of earth. Okay, and as you know, if it is initially at the surface of earth, तो you must be knowing कि इसका initial distance जो होगा वो होगा capital R. तो ऐसा मान लो सबसे पहले. तो now what you are supposed to do is, हम साथ में लिखते भी जाएंगे. हमने क्या कंसीडर किया, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, कैपिटल M. मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R. तो कंसीडर an object kept on the surface of earth. Object kept on the surface of earth, और ऑब्जेक्ट बोल भी दिया तो उसका मास भी यही बता दो. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. तो एक काम करता हूं, इसके साथ मास भी बता देता हूं. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kept, कहाँ रखा है इसको, ऑन द सरफेस ऑफ earth, kept on the surface of earth. Good. Fine. तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए. Now what you should know, what is the general formula for potential energy? What is the general formula for potential energy? Minus G capital M small m by R. We know that potential energy of the system of earth and the object is given by u equal to minus G capital M small m by R. ऐसा लिख दिया ना तो स्पेसिफाई कर देना कि क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व है. स्मॉल m तो आप बता चुके हो, कैपिटल M बाकी है. तो वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल r is separation between the center of earth and the mass, between the center of earth and the mass, and the object basically, right? इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1.
नाउ इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, अर्थ के सरफेस पे. सिंस द ऑब्जेक्ट is initially on the surface of Earth, at the surface of Earth is the same thing of Earth. Therefore, small r will be equal to capital R, where capital R is radius of Earth. And therefore, initial potential energy UI will be equal to minus G capital M small m by capital R. Equation number 2, second equation. Okay. अब ऐसा करेंगे, अब हम इसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाएंगे, टू सम हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो लेट्स कंसीडर, लेट अस टेक, और इस केस में जो आपका स्मॉल r आएगा वो आएगा r प्लस h. सो let us lift this object कहाँ पे, let us lift this object at a height h from the surface of Earth. Therefore, potential energy of the object at this new position, is U final, which is minus G capital M small m by R final, but R final is capital R plus H. Okay. Therefore, you have U final equal to minus G capital M small m upon R plus H, equation number 3. So now what is happening, as you know, as the object is lifted up, तो क्या हुआ, there is change in potential energy. So in this case, what you can say is the change in or increase in, क्योंकि हाइट पे लेके जाने में वर्क हुआ ना, तो वर्क कहाँ होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेंशियल. तो चेंज बोलने के यहाँ पे इंक्रीज, क्योंकि चेंज जब बोलते हो तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे इंक्रीज. द इंक्रीज in potential energy is given by delta U, that is final minus initial, right? आपके पास फाइनल का इक्वेशन है, आपके पास इनिशियल का इक्वेशन है, तो यू हैव माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन माइनस, और इनिशियल में वापस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस capital G capital M small m upon R, and therefore delta U, इसमें से capital G capital M small m common, minus 1 upon R plus H plus 1 by R, not minus because हमने G M और M common निकाला, not negative sign. तो यहाँ पे एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट कंफ्यूजन होने से बेटर है जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, 1 by R माइनस 1 अपॉन R प्लस H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस H. Therefore delta U, ये R और ये R कैंसल, delta U is capital G capital M small m into H upon R into R plus H. ओ, अब क्या करें, यहां तक तो आ गए, लेकिन हमको क्या चाहिए था, कनेक्शन. किसका कनेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ, ओ, तो जो इक्वेशन हमारे पास आया उसमें छोटा m और h है, G नहीं है, वेरी स्मॉल G,
Do you see small g in equation number 4? I don't see. So you have to bring. So you know, but yes, but small g is gm by r square, and therefore gm equal to gr square, equation number 5. And therefore from 4 and 5, therefore from equation number 4 and 5, you have, therefore what you have is delta u, increase in potential energy. ये gm की जगह पे आप लिखोगे gr square small m h upon r into r plus h. Cancel or cancel. So therefore increase in potential energy is mgh, r नीचे r plus h. I can see mgh now. अब if I assume, मान लेते हैं ये जो height है, this height is very very small compared to radius of earth. Example मैं ऑब्जेक्ट को 1 किलोमीटर हाइट पे ले गया. What is radius of earth? 6400 kilometers. So of course 1 kilometer is very very less compared to 6400. So if h is very very small compared to r, so r plus h is approximately equal to r. Therefore increase in potential energy mgh r upon r cancel. Therefore delta u equal to mgh. मतलब ये है जो mgh आप लिखते हो ये पोटेंशियल एनर्जी ही है, बट ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है एज यू टेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट. So this is nothing but potential energy only. It is increase in potential energy when you take an object from the surface of earth to a height which is very small compared to radius of earth. So this is what you need to remember, right? यहाँ तक अगर क्लियर है तो अभी एक काम करेंगे, हम जो स्टेप्स फॉलो किए वो एक बार एक पेज पे लिख लेते हैं. वेरी सिंपल. सी, सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. फिर ऑब्जेक्ट कहाँ था पहले, अर्थ की सरफेस पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. फिर कहाँ ले गए उसको, हाइट पे, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच. फिर आपने देखा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो ये था फाइनल, राइट, और उसके बाद ये था आपका यहाँ पे इनिशियल. गुड. देन what next thing you did was to take out this as common. तो ये जो G capital M small m था इसको निकाल लिया आपने कॉमन, तो you have taken this out as common, तो ये आ गया कॉमन, of course with a negative sign. तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, राइट, करेक्ट. ये नेगेटिव साइन हमने कॉमन नहीं निकाली तो हम यहाँ पे रख सकते हैं. अगर कॉमन निकालोगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपके ऊपर. आई विल कीप इट लाइक दिस. ओके, तो मैं इसको रख रहा हूं माइनस, मतलब मैं नेगेटिव साइन कॉमन नहीं निकाल रहा हूं. गुड, डजंट मैटर, एक ही आंसर आएगा. तो यहाँ पे डेल्टा यू विल बी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर प्लस एच. तो डेल्टा यू इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम r plus h minus r upon r into r plus h. cancel. तो you have delta u equal to gm की जगह पे लिखोगे gr square small m h upon r into r plus h. cancel and cancel, right? Then you can say delta u equal to mgh r upon r plus h. फिर for small h, for h very very less than r plus h is approximately equal to r, so delta u equal to mgh r by r, cancel, which is equal to mgh. Done. तो steps याद रहेंगे, तो doesn't matter कितना बड़ा derivation है, doesn't matter, it's simple thing. Now going ahead, as I told you
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन दे आर वेरी वेल कनेक्टेड, वहां पे भी आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद इमीडिएटली यू डिराइव इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया था -gm/m/r, वहां पे आपने इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था k q1 q2/r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के इमीडिएटली बाद यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यू विल बी नाउ डिराइविंग व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। सो बट यू शुड नो कि कैसे आया वो फॉर्मूला। तो यू शुड नो, वी स्टार्ट बाय सेइंग कि हमारे पास सारे के सारे चार्जेस इंफिनिटी पे है, राइट? और इंफिनिटी पे है मतलब एक दूसरे से भी इंफिनिटी पे है, दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, ऑल ऑफ देम आर एट इंफिनिटी। Then you bring the first charge and keep it at some position A. No work is done because there was nothing to oppose. फिर आप लाते हो सेकेंड चार्ज। अब एक चीज याद रखना, ये चार्ज Q1 जैसे ही A पे रख दिया तो ये उसका फील्ड हो गया। फील्ड मतलब ये इस रीजन में इसकी दादागिरी चलेगी। मेरा रीजन है, यू कैन नॉट कम हियर, राइट? तो ये Q2 को आना है, तो Q2 को आना है तो उसको बेचारे को बहुत बहुत मेहनत करके आना पड़ेगा। वर्क डन, रेजिस्टेंस वाज ऑफर्ड, तो रेजिस्टेंस था तो वर्क हैज टू बी डन, राइट? फिर ये जो वर्क डन था इट वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे? इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने डिराइव किया था k q1 q2/r। अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में एक ही डिफरेंस था, वो डिफरेंस ये था नॉट साइन बट नॉट डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल, वेट अ मिनट, पोटेंशियल हम एक पॉइंट पे मेजर करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे, मैं इसको नाम दे देता हूं, इस पॉइंट पे B पॉइंट पे हमको पोटेंशियल मेजर करना है। तो इतना ही चेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि ये जो चार्ज Q2 हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, अब ये चार्ज होना चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट? अब चार्ज यूनिट पॉजिटिव हो, यूनिट पॉजिटिव मतलब +1 कूलम। फिजिक्स में 1 को बोलते हैं यूनिट। ये यूनिट वो ऐसा यूनिट नहीं है, यूनिट मतलब वैल्यू 1, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, राइट? तो यू रिमेंबर पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है यहां से, है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड कीप इट एट पॉइंट B. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इतना ही चेंज है कि जो सेकेंड चार्ज आप ला रहे हो दैट हैपेंस टू बी यूनिट पॉजिटिव, तो इसको भी तो लाने में वर्क डन हुआ ही होगा, राइट? तो इफ दिस चार्ज, कौन सा? सेकेंड चार्ज, इफ इट इज 1 कूलम, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी की क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो डिफाइन कैसे करोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग। कौन सा चार्ज मूव किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से मूव किया? इंफिनिटी से। सो electrostatic potential is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point. कौन सा पॉइंट? जहां चार्ज को रखना है, जहां सोर्स चार्ज है वहां नहीं, सोर्स चार्ज तो है पर चार्ज को कहां रखना है? B पॉइंट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन, इज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब वर्क डन, is the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. इसका मतलब सेकेंड चार्ज क्या था? +1।
तो Q2 को क्या लिखा मैंने, +1। जैसे ही यहाँ पे +1 लिखा तो U को लिख देना V। ये V क्या है, पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम भी नहीं है, ये पोटेंशियल है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity to that point। मैं बार बार ऐसा इसके लिए बोल रहा हूँ because you should remember the difference between these two always। ये याद होना चाहिए आपको। अब मान लो, imagine कि मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, I don't have यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास Q2 चार्ज ही है, I don't have यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मेरे पास 1 कूलम छोड़ के सब कुछ है, 1.1, 1.111, 1.15, 1.5, 2, 3, 4 सब 1 नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर ओके हम पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं, डिवाइड बाय Q2। अल्टीमेटली क्या करना है, Q2 को क्या बनाना है, 1। तो दोनों साइड पे Q2 डिवाइड कर लो, या तो इसका Q2 सीधा यहाँ पे लाके रख दो, हो गया। यहाँ पे Q2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो जो बचा उसको बोलते हैं पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल, पहले चार्ज का, पहले का, जिसको मूव किया उसका नहीं, पहले चार्ज का। क्यों पोटेंशियल पहले का, क्यों, अरे वो वहां का आपको पता है, ये उसका रीजन है, वो पहले से वहां पे है, ये बाद में आया, तो जो पहले से है उसकी दादागिरी चलती है ना, हाँ, तो पोटेंशियल उसका है। किसका, पहले का। जो पहले से था उसको सोर्स बोलते हैं, तो वो सोर्स चार्ज का पोटेंशियल है। जो बाद में उसको टेस्ट बोलते हैं, तो टेस्ट चार्ज है। गुड। देन अब इसका हम ग्रेविटेशन के साथ क्या रिलेशन, वही है, एग्जैक्टली वही है। अब सिर्फ ग्रेविटेशन में क्या बोलोगे, वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ the system of earth and the mass m is given by U equal to माइनस G कैपिटल M स्मॉल m by r। सिर्फ क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब इसको क्या कर सकते हो, ऐसा है, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, या तो इसको ऐसा साइड में कर सकते हो। इसको साइड में कर दिया तो ब्रैकेट में एक टर्म बचा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल याद करो, के की जगह पे G, सोर्स चार्ज की जगह पे सोर्स मास अपॉन डिस्टेंस। वहां प्लस था क्योंकि फोर्स रिपल्सिव था, यहाँ माइनस है क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है। करेक्ट, राइट। तो अब आपको क्योंकि एक्सप्लेन करना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो, ये पहली बार है, तो अब ऐसा करो, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या आप बोलोगे, द टर्म इन द ब्रैकेट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ एंड लोकेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, and this term is called as gravitational potential of earth at distance r from earth। Good. So the term in the bracket is depends only on mass of earth and the location, इसका location of the point, अरे वहां पे ऑब्जेक्ट का वैल्यू 1 kg होना चाहिए, जैसे चार्ज 1 कूलम था वैसे मास 1 kg होना चाहिए, सेम एकदम एग्जैक्ट ऑन द सिमिलर लाइन, एंड लोकेशन ऑफ द पॉइंट एंड इज इंडिपेंडेंट of mass of the object।
दिस टर्म, ये जो टर्म है, कौन सा टर्म है, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, इज known as gravitational potential of earth. कहां पे, at position r, and is denoted by v. कहां पे, at r. ये v इंटू आर नहीं है, ये v इज अ फंक्शन ऑफ r है, लेकिन किसका है, अर्थ का है, तो ve ऑफ r इज माइनस जी कैपिटल m बाय r. ये आ गया इसका फॉर्मूला. ये किसका पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल. वेरी गुड, यहां तक क्लियर, गुड. नाउ बट इट इज ऑफ कोर्स, ये जो आपके पास इक्वेशन था और ये जो आपके इक्वेशन है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 what you can say is potential energy U is V of R into M. तो therefore अभी मतलब लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, द चार्ज दैट यू आर मूविंग. यहां पे भी वही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, therefore gravitational potential energy is equal to gravitational potential. Gravitational potential energy is equal to gravitational potential multiplied by mass, of the object. Good. Gravitational potential multiplied by mass into m, mass of the object. Therefore आप बोल सकते हो gravitational potential is equal to gravitational potential energy upon mass. तो gravitational potential is nothing but potential energy per unit mass. जैसे वहां पे भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैंने बताया Q2 1 कूलम नहीं था, फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को Q2 से डिवाइड कर दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. वेरी गुड. तो ये अब काम में आएगा, ये याद रखना. अब इमेजिन we'll need this again. तो what we can do now is, मान लो हमारे पास ये सिचुएशन है जिसमें इनिशियली ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, तो ऑब्जेक्ट इज एट सम इनिशियल पोजीशन ए. ओके, हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली अर्थ के सरफेस पे है. ठीक है तो है, डजंट मैटर, हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट जो है वो सम पोजीशन पे है ए, राइट. तो ये आ गया ए पोजीशन पे. गुड. अब आपको पता है कि ए पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल will be ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो खुद डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, राइट. मतलब ऑब्जेक्ट के एक गिवन पोजीशन के लिए एक गिवन पोटेंशियल एनर्जी होगा. मैंने जैसे ही ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, तो नए पोजीशन पे नया पोटेंशियल एनर्जी, राइट. पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ मतलब पोटेंशियल चेंज हुआ, मतलब अब ए और बी में पोटेंशियल का डिफरेंस है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास. बट पोटेंशियल एनर्जी खुद किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे.
मैंने पहले ऑब्जेक्ट को रखा था ए पे, तो ए पे जब ऑब्जेक्ट था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा यूए। फिर मैं ऑब्जेक्ट को ले गया बी पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया चेंज। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होना मतलब पोटेंशियल चेंज होना, मतलब ए पॉइंट पे पोटेंशियल था वी ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है वी बी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल दोनों सेम है क्या? नहीं, डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जितना डिफरेंस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ही इस केस में हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पहले हम बात कर लेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, वापस as I am telling you again and again, you do not need to memorize anything. एक के बाद एक कॉन्सेप्ट समझा है तो अपने आप सब चीजें क्लियर होगी एंड यू विल बी एबल टू राइट डाउन। तो अब आप क्या करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे कंसीडर an object of mass m initially located at point A. Okay, so consider an object of mass m initially located at point A. Let UA be the potential energy of the system when the object is at A. When the object is at A, therefore gravitational potential at A is given by gravitational potential energy मत बोल देना, gravitational potential at A is given by VA, so that is VA equal to potential energy UA upon mass of the object, right? Similarly at position B, at location B, Similarly, at point B, potential is given by VB equal to UB by M. Therefore, difference in gravitational potential, जिसको आप gravitational potential difference बोलते हो, difference in gravitational potential is delta V final minus initial. ये V है, ये U नहीं है, it is V. It is final potential minus initial potential. फाइनल पोटेंशियल था UB by M, इनिशियल था UA by M. So therefore you have delta V equal to UB minus UA by M, right? Which is nothing but increase in potential energy upon mass, right? Therefore potential difference is increase in potential energy upon mass. But wait a minute, do you remember this was work done upon mass? अब याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम ऐसा ही बोलते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हो तो इनिशियल वैसे भी आप इंफिनिटी लेते हो, और इनिशियल इंफिनिटी लेते हो तो फिर आप बोलते हो वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कहां था? इंफिनिटी पे।
गुड, तो यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, बट दैट इज सफिशिएंट अप टू दिस पॉइंट, यहाँ तक ठीक है। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड नो फॉर टुडे इज, ये अभी तक हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन किया, लेकिन हमने डिफाइन किया अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, किया था क्या अर्थ का? यस, हर बार ऐसा तो नहीं होगा। यू मे हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2, एंड देन तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनी मास, राइट? तो जनरल फॉर्मूला हम बना लेंगे, जनरल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आई विल राइट डाउन जनरल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स कौन सा पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इस केस में क्या करेंगे हम? कंसीडर टू masses m1 and m2 separated by distance r, right? Therefore gravitational potential energy is given by, gravitational potential energy is, इस केस में it will be g m1 m2 by r. करेक्ट? इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट? तो अब ये जो इक्वेशन है इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे? तो वो ऐसे, इसको बोलेंगे ओ ओके प्लीज साइड में हो जाओ, डन। या फिर और ओके यू गो अवे, दोनों में से एक, राइट? अब जब दोनों में से एक को भगा दिया तो ये जो बचा, ये ब्रैकेट के अंदर जो मास होता है वो डाउन होता है, डाउन। पोटेंशियल किसका? फिर 1 का। तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 1, कहां पे? आर लोकेशन पे, इनटू m2, और ये दिस इज v2 into m1, right? So here you can say, इसको और बोल दो, और and you can say here v1 of r and v2 of r, they are gravitational potentials of masses। अभी masses पहला v1 है तो masses m1 and m2 respectively। That's all you need to know. So that's it for today. We'll continue with more in the next session.